चलें जी, लिखेंगे वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया। लिखेंगे इंडिया। अच्छा मैडम, आप कहाँ थे? इतना लंबा बीमार कौन होता है? हैं? चले, इंडिया इज वन ऑफ द 10 वर्स्ट। इंडिया इज वन ऑफ द 10 worst disaster prone countries in the world. According to UN, according to UN Office of Disaster Risk Reduction, according to UN Office for Disaster Risk Reduction Report 2017, India has been ranked as India has been ranked as the world's most disaster prone country. World's most disaster prone country for the displacement of residents. For the displacement of residents. Next line. India is vulnerable. India is vulnerable to a large number of India is vulnerable to a large number of natural as well as human-made disasters. Natural as well as human-made disasters on account of its unique geoclimatic on account of its unique geoclimatic and socio-economic conditions. Next point. Out of 36 states and union territories, out of 36 states and union territories, 28 of them are disaster prone. 28 of them are disaster prone. Next, almost 85% of India, almost 85% of the country is vulnerable to single or multiple disasters. Next, 57% of its area, 57% of its area lies in high seismic zone. Next, nearly 40 million hectares, nearly 40 million hectares of land is prone to floods. Next, 68% of area, 68% of its area is susceptible to droughts. Next, about 8% of land, about 8% of land is vulnerable to cyclones.
ठीक है जी, ये है इंडिया में वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल। ठीक हो गया। नेक्स्ट, द फाइव डिस्टिंग the five distinctive regions of the country. Number one, regions of the country. Number one, Himalayan region. आगे डैश डालेंगे, earthquakes and landslides. Number second, the plains. डैश डाल के flood prone. Third, plains, flood prone. Third, deserts. And semi-desert areas, drought and famines. Next is the coastal zone, prone to cyclones and the storms. नेक्स्ट लिखेंगे हम इंपॉर्टेंट हजार्ड्स, डेजर्ट्स और सेमी डेजर्ट्स मिला के, उस डेजर्ट्स और सेमी डेजर्ट को एक में लिख दिया, अलग अलग भी कर सकते हैं। चलें जी, अब आ जाइए नेचुरल हजार्ड्स। नंबर वन, सबका फेवरेट, सब जानते हैं इसको, अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक क्या है आप सब जानते ही हो। इसमें देयर आर टू लोकेशंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी? क्या बोला? हाँ, one point is called as focus, the place of origin of an earthquake, and the perpendicular distance from focus toward the surface of earth is called as epicenter. This is the place of origin and this is the place of maximum destruction caused by an earthquake. अब earthquake को measure करने के लिए we have got two scales. One is Mercalli scale. Second is Richter scale. Mercalli scale measure करता है intensity. ये स्केल मेजर करता है मैग्नीट्यूड। ये 0 to 12 तक का स्केल है और ये 0 to 10 तक का स्केल है। रिक्टर स्केल को मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है सीस्मोग्राफ, जहां पर अर्थक्वेक वेव्स का मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है, और मर्करी स्केल को मेजर करने के लिए ये पता नहीं होगा, है ना? गुड। अब मर्करी स्केल जो होता है, ये अर्थक्वेक आने के बाद जो डैमेज कॉज हुआ है, उस डैमेज कॉज का असेसमेंट किया जाता है, फिर उसको रेट किया जाता है मर्कली स्केल के ऊपर 0 to 12 के ऊपर। तो इट इज द असेसमेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक। तो डैमेज कॉज होने के बाद कितना डैमेज हुआ है, लाइफ कितनी लॉस हुई है, प्रॉपर्टी कितना डैमेज हुआ है, उसकी असेसमेंट करने के बाद हम बोलते हैं भैया ये 5 स्केल का है या 8 का है या 9 का है, 10 का है। ठीक हो गया?
तो इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आजकल इसको हम यूज नहीं करते हैं, आजकल हम रिक्टर स्केल को यूज करते हैं। ये पहले से यूज किया जाता था, मर्कली स्केल। इट इज द असेसमेंट ऑफ द डैमेज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक एंड इट इज स्केल्ड आफ्टर द अर्थक्वेक हैज कम। ठीक हो गया? तो डैमेज को असेसमेंट के बाद हम स्केल करते थे। ठीक हो गया? तो मर्कली स्केल इंटेंसिटी और रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड। तो ये क्या आ गया? सीस्मोग्राफ। क्लियर हो गया? अब कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स, major causes, plate movements, or you can say tectonic plate movement. So we have three types of plate movements. एक हम बोलते हैं डाइवर्जेंट, एक हम बोलते हैं कन्वर्जेंट, एक हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जिंग प्लेट मूवमेंट, कन्वर्जेंट और कन्वर्जिंग प्लेट मूवमेंट, ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट also known as स्लाइडिंग प्लेट मूवमेंट और बाउंड्री। डाइवर्जेंट का मतलब where two plates are moving away from the common center. Convergent का मतलब where two plates are colliding. And third is the transform where two plates are sliding past each other either in the opposite direction or in the same direction with different rate of movements. मतलब ये दो प्लेट्स हैं, they are moving in the same direction but one plate is moving faster than to the other plate. तो प्लेट आपस से रगड़ खाती हुई निकलती है। ठीक हो गया? ये मेजर कॉज है टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट का, अर्थक्वेक्स का। अब देखो, अर्थक्वेक्स को हम फर्दर डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ फोकस, डेप्थ ऑफ फोकस से भी हम अर्थक्वेक को डिफरेंशिएट करते हैं। एक हम बोलते हैं शैलो फोकस अर्थक्वेक्स, एक हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक्स और थर्ड हम बोलते हैं डीप फोकस अर्थक्वेक्स। शैलो फोकस वो होते हैं जिनका डेप्थ इज लेस देन 70 किलोमीटर्स, इंटरमीडिएट बिटवीन 100, हंड्रेड to 300 kilometers, and deep focus 300 to 700 kilometers. Shallow focus earthquakes, intermediate focus earthquakes और deep focus earthquakes. कौन सा डेंजरस होगा? चलो चलो हम्म चलो हेलो चलो बोलो, कौन सा होना चाहिए खतरनाक? चलो चलो हाँ, डीप, चलो डीप, हाँ जी, डीप फोकस, डीप फोकस, डीप, हाँ जी मैडम। चलो देखो, अगर ये शैलो फोकस है, ये इंटरमीडिएट फोकस है, ये डीप फोकस है, तो जितना नीचे से एनर्जी ऊपर आएगी रास्ते में डिसिपेट होगी, जितने कम डेप्थ से आएगी वो कम डिसिपेट होगी, इट विल बी मोर डिस्ट्रक्टिव।
तो शैलो फोकस अर्थक्वेक्स आर मच 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 मोर डिस्ट्रक्टिव। बाकी वाले तो शायद आप फील भी ना कर पाओ। यू नीड टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव टू फील कोई अर्थक्वेक आया भी है, ठीक है। तो शैलो फोकस अर्थक्वेक्स आर द डेडलियर वंस। ठीक हो गया। अब अदर कॉजेज के अंदर वॉल्केनिक eruptions, इससे भी अर्थक्वेक आते हैं। इसके अलावा मैन मेड न्यूक्लियर ब्लास्ट, इससे भी आते हैं। तो आजकल एक नया आया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज रिजर्वायर इंड्यूस्ड सीस्मिसिटी। दैट मीन्स रिजर्वायर्स जिसको हम बनाते हैं टू स्टोर वाटर, उससे भी अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। क्यों? अगर से आपने किसी रिवर के ऊपर कोई डैम बना दिया तो एक रिजर्वायर बन गया, तो एक लेक बन गई, है ना। अब जहाँ पे लेक बनी है, अगर उस एरिया में देर इज सम फॉल्ट लाइन, तो लेक का पानी उस फॉल्ट के अंदर इंट्रूड कर सकता है, जिससे देर कैन बी लुब्रिकेशन ऑफ फॉल्ट्स, देर कैन बी लुब्रिकेशन ऑफ फॉल्ट्स। जब लुब्रिकेशन ऑफ फॉल्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स होगी, तो हलचल होगी, तो उससे भी अर्थक्वेक आ सकता है। इसको क्या बोलते हैं? रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। आपको शायद मैंने पहले बताया भी था एक बार। इंडिया में 1993 के अंदर लातूर महाराष्ट्र में एक अर्थक्वेक आया था, एंड इट वाज लिंक्ड विद विच डैम? कोयना डैम। कोयना इज अ ट्रिब्यूटरी टू कृष्णा रिवर। इवन हमारे जम्मू के अंदर जो बागलियार डैम है, अभी इसका ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, बट पीपल आर एट्रीब्यूटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ earthquakes which are coming in the Dora district, they are attributed to Baghdiyar Dam built on river Chenab। ठीक है, तो वो भी क्या है? reservoir induced seismicity क्या है। तो these are other causes which can also cause earthquakes। ठीक हो गया जी। चले आगे लिखेंगे। Now earthquake risks in India। India falls prominently on the alpine Himalayan belt, prominently on the alpine Himalayan belt, first off this region, in this region, Indian plate is thrusting underneath. Indian plate is thrusting underneath the Eurasian plate. Thrusting underneath the Eurasian plate at a speed of 5 centimeters per year. At a speed of 5 centimeters per year. First off, this makes the entire region covering 14 states located in western and central Himalayas, northeastern region, and parts of Indo-Gangetic plains.
parts of Indo-Gangetic plains highly prone to earthquakes. Highly prone to earthquakes. Next line में the other seismically active regions include Gulf of Khambat, and Run of Kutch, Gulf of Khambat and Run of Kutch in western Gujarat, then parts of peninsular India, and the island regions of Lakshadweep and Andaman Nicobar. Next point, India is divided into 4 seismic zones. According to divided into 4 seismic zones. According to the intensity of earthquakes expected. That is 2, 3, 4, and 5. Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5. Where Zone 5 is the most active. Which includes which includes whole of northeast India, northern portions of Bihar, Uttarakhand, Himachal, J&K, Gujarat, and Andaman Nicobar Islands. Whereas much of India lies in Zone 2 and Zone 3. Now next लिखेंगे आप NDMA's guidelines on earthquake management. First is earthquake resistance construction of new structures. Earthquake resistant construction of new structures. तो जितने भी नए स्ट्रक्चर्स बने वो एज पर द अर्थक्वेक स्टैंडर्ड्स ही बने. एक हमारे पास बोगीबील नाम का बना था, वो क्या बोलते हैं इसको, ब्रिज, असम के अंदर. मालूम है उसके बारे में? नहीं मालूम. लिखेंगे एक फॉर एग्जाम्पल, कहाँ गया वो, एक मिनट. बोगीबील ब्रिज, BOGIBEEL, Bogiebeel Bridge in Assam on Brahmaputra is a combined road and rail bridge. Between Dhemaji,
Dhemaji, Dhemaji and Dibrugarh districts. Dhemaji and Dibrugarh districts is made earthquake resilient. Is made earthquake resilient. नेक्स्ट इज सेकंड नंबर पे आपका आता है इसमें रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट. इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर establishing mechanisms to implement building codes and other safety codes to ensure that all stakeholders like builders, architects, engineers and government departments to adhere to seismic safety. To adhere, ADHERE, to adhere to seismic safety in all the design and construction activities. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट इज अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस. Then fourth is capacity development. That is education, training, research and development, capacity building and documentation. ठीक हो गया. अब major challenges for earthquake mitigation. पहला, inadequate enforcement of earthquake resistant building codes. Earthquake resistant building codes and town planning bylaws. Bylaws. अब जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है हमारे एरिया में, क्या वो सभी के सभी जो मैप्स बनते हैं वो क्या आगे इंजीनियर चेक करते हैं कि भाई आज को एक के हिसाब से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? कौन चेक कर रहा है? तो क्या ना सुनने की बातें अलग अलग हो जाए. ठीक है, तो एनफोर्समेंट उस तरीके से नहीं हो रही है. नेक्स्ट इज lack of formal training among the professionals. Lack of formal training among the professionals in earthquake resistant construction practices.
in earthquake resistant construction practices. Next, lack of adequate preparedness and poor response capacity of various stakeholder groups. Next, lack of awareness among the various stakeholders. Lack of awareness among the various stakeholders about the seismic risk. चले, ये था आपका अर्थक्वेक। नेक्स्ट, इसी के रिलेटेड डिजास्टर एक आता है सुनामी। सबने नाम सुना हुआ है? क्या होती है? कहाँ से आती हैं? क्यों आती हैं? भाई कोई बात है पूछ ली थी स्टेप तो की टेक्टोनिक प्लेट, लंबी वेव और और ये मैं जाऊं? अरे ये तो मैं जाता हूँ, फिर खत्म हो गया, लेक्चर इज ओवर, है कि नहीं? शाबाश शाही। हाँ, शाबाश। बोलो बोलो, जितना भी है बताएं, बोलो सब। हाय हाय, ये गप नहीं मारने, और कुछ? हाँ, नेक्स्ट, वार्म एंड कोल्ड गन भी कहाँ से आ गए? हाँ, बस चले। देखो, सुनामी जो है ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। जापानीज वर्ड मीनिंग हार्बर वेव्स। अब ये हार्बर क्या होता है? समझ, व्हाट इज हार्बर? हार्बर, क्या बताया था मैंने आप लोगों को? तो फिर रेस्टिंग प्लेस ऑफ शिप्स। अब देखो, कोई भी जो हार्बर होता है वहां पे डायरेक्ट वेव एक्शन नहीं होता, वहां पर डायरेक्ट वेव एक्शन नहीं होता। तो हार्बर्स आर पार्ट ऑफ द पोर्ट्स वेयर शिप्स स्टैंड्स फॉर इधर मेंटेनेंस वर्क और लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो हार्बर के अंदर सिंगल एंट्री होती है और सिंगल एग्जिट होता है, और यहाँ पर देर इज नो डायरेक्ट वेव एक्शन। अब हार्बर में कोई वेव नहीं आती, बस सुनामी एक ऐसी वेव है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई एम्पलीट्यूड इट एंटर्स द हार्बर्स, तो इट इज नेम्ड एज हार्बर वेव। ठीक हो गया? बिकॉज जनरली हार्बर इज अ प्लेस वेयर देयर आर नो वेव्स। तो सुनामी एक ऐसी हाई एम्पलीट्यूड वेव है जो हार्बर में एंटर कर जाती है, तो उसको नाम क्या दिया हुआ? हार्बर वेव। ठीक हो गया? अब ये जनरेट कैसे होती हैं? देखो, सुनामीज आर generated when epicenter of an earthquake when
epicenter of an earthquake is on the ocean floor. Epicenter of an earthquake is on the ocean floor and which leads to, ये बड़ा important है, and which leads to vertical displacement of the ocean floor. And which leads to vertical displacement of the ocean floor. अब ऐसे करो, आ जाओ आप मेरे पास. हाँ, रिकॉर्ड करेंगे आपको. जरा हाथ दो, दोनों हाथ जेब में डाल दो उसको. भाई देखो, ये है हमारे पास ओशन फ्लोर, दिख रहा होगा. हाँ दिख रहा है, चेक करो. अब ये है सी लेवल, ये है सी लेवल. अब अगर ये प्लेट मूवमेंट होगी, अर्थक्वेक आएगा. अब एपिसेंटर ओशन फ्लोर पे होना चाहिए, पहली कंडीशन. बट एपिसेंटर होने से अर्थक्वेक का हर बार सुनामी नहीं आती. उसके लिए हमारे पास दो किस्म की डिस्प्लेसमेंट होती है ओशन फ्लोर की. एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होती है और एक वर्टिकल होती है. अब आप पहले सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस करोगे. हॉरिजॉन्टल से हिलाओ, आशा से हिलाओ, ठीक है. अब देखो, अब ये हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस कर रहा है ओशन फ्लोर को. अब सी लेवल पे कोई फर्क पड़ रहा है? हिलाओ. हाँ? नहीं पड़ रहा ना, सी लेवल स्टेबल है. अब अगर ये वर्टिकल डिस्प्लेस होता है, ठीक है. अब इसको एक वर्टिकल डिस्प्ले करो. हाँ किया. अब जैसे ये वर्टिकल डिस्प्लेस होगा तो देयर विल बी ए बम्प एट द सी लेवल. जब ये नीचे आएगा फिर पानी ऊपर भी तो आएगा. जब ये पानी ऊपर आता है फिर सुनामी जनरेट होती है. तो एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक हैज टू बी ऑन द ओशन फ्लोर, पहली कंडीशन, नो डाउट. बट उसके साथ देयर शुड बी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओशन फ्लोर. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस हुआ होगा तो सुनामी जनरेट नहीं होगी. सब होगी कब आएगी? जब वर्टिकल होगा. थैंक यू सो मच. ठीक हो गया. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक हो गया कि भाई ओशन फ्लोर के ऊपर हमारे पास एपिसेंटर है. एपिसेंटर इज ऑन द ओशन फ्लोर एंड दैट व्हिच लीड्स टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओशन फ्लोर. ओनली देन द सुनामीज आर जनरेटेड. क्लियर हो गया? चले ना लिखेंगे इंपॉर्टेंट characteristics of tsunamis. These are series of continuous waves. These are series of continuous waves with extremely long wavelengths, and wave period. Next point, next characteristic, the rate of movement of tsunamis in the open oceans is between, now what do you think, rate of movement कितना होगा? वेव वेलोसिटी कितनी होगी? रेट ऑफ मूवमेंट किलोमीटर्स पर आवर में कितनी तेज चलती होंगी? शाबाश. एनी गेस? 100 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी चलती है. 50 किलोमीटर, 200, 300, 400, 500, 500, 180, ओके, 100, 150, 110, 200. ऐसे जनरली गेस करना कितना तेजी से चलती होंगी. शाबाश. 100, 200, 300, 150, 70, 80, 15 किलोमीटर. बोल, फिर चलने की जरूरत क्या है? बैठ जाओ तरी. हाँ जी, 30, 40. बोलो, जरूरत क्या चलने की? हाँ जी, बस करना यार, जब तो लेके आ रही है. चलें. The rate of movement of tsunamis in the open ocean is between 500 to 800 kilometers per hour.
जम्मू आगरा 1 घंटे में 500 to 800 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक हो गया जी। चलें नेक्स्ट पॉइंट, द हाइट ऑफ सुनामीज इन द ओपन ओशंस इज बिटवीन, हाँ जी अब बताओ हाइट कितनी होगी? तब गैस ठीक हो गया था। हैं रेंज रेंज कुछ नहीं होती है, ये आपके ऊपर है। अब देखो रेंज ठीक होगी ना। अब रिया का और उनका पीछे वालों का क्या हो गया, क्लियर हो गया, मैक का ठीक हो गया ना, बीच में आ गया ना, 500 से 1000 के बीच में हो गया। हाँ जी रिया शाबाश, गुड गैस। हाइट ऑफ सुनामीज इन द ओपन ओशंस 15 से 20 मीटर अप्रोक्सीमेटली, गुड। हाँ जी हाँ शाबाश, आई थिंक गैस कर। क्या मीटर? जम्मू आ जाएगी। हाँ किलोमीटर, हाइट, हाइट हाइट मीटर कितना से? 15 से 20 मीटर। हाँ जी 10 to 50, 15 फीट, ठीक है। 3 से 5 मतलब मीटर हो क्या? हाँ 50 to 70 मीटर्स। हाँ जी 10 to 15 बता दिया। 5 फुट तो बोलो बैठ जा, उतनी दूर क्या है, 5 फुट क्या हो, कुछ तो बोले यार, कमाल करता है, दिल बड़ा करो। 5 क्या मीटर? हाँ 5-10 मीटर, 15-20, 40-50 फीट, 50-70, गुड। लिखेंगे द हाइट ऑफ सुनामीज इन द ओपन ओशन इज बिटवीन, सेंटीमीटर्स ओनली। लगा शॉक? मैं कह रहा हूँ शॉक लगा। लिखो पहले, द हाइट ऑफ सुनामीज इन द ओपन ओशंस इज ओनली बिटवीन 30 to 60 centimeters. That is why they travel unnoticed. That is why they travel unnoticed in the open oceans and are even not caught by the satellites. And even they are not caught by the satellites. अगर आप ओपन ओशन के अंदर हैं, बीच में कहीं पर, आप किसी भी पर्पस के लिए याच में गए हो, आपके नीचे से सुनामी निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज दिस इज मच मच इनसिग्निफिकेंट हाइट। नाउ क्वेश्चन कम्स कि जब ये कोस्ट के पास पहुंचती है फिर इसकी हाइट कैसे बढ़ जाती है? लगाओ दिमाग। क्योंकि जो लोग होते हैं कौन से पंप? खुद ही जवाब दिया और खुद ही असर शुरू होगी। हाँ ये शाबाश, क्या होता है? गुड, क्या होगा उससे? आगे तक एक होता है हम उसकी क्या उसकी वजह से, गुड शाबाश। हाँ जी सेम ही है ना, सही। हाँ शाबाश। क्या होता है कि कोई कौन कौन बंदा बीच के पास कभी गया है? बीच बीच बीच। अब देखो जब लहर बीच के पास आती है उसकी हाइट बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? हवा तो लेके आ रही है, हवा उनको जनरेट करती है, बट उसकी हाइट क्यों बढ़ती है जब वो कोस्ट के पास पहुंचती है? डेप्थ कम हो तो उसे क्या होगा? तो नीचे से ऊपर वाले सफेद होगी वो और ऊपर भी से गुड, ऐसे कुछ होता है। देखो ये है हमारे पास सी लेवल। अब वेव चलती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। अब क्या होता है, ये आपके क्रेस्ट है, ये आपके ट्रफ हैं। ट्रफ्स को लगती है फ्रिक्शन फ्रॉम द बॉटम, फ्रिक्शन फ्रॉम द बॉटम, जिससे
ट्रफ्स पीछे छूटना शुरू हो जाते हैं और क्रेस्ट आगे की तरफ जाते हैं, जिससे वेव्स दे स्टार्ट ब्रेकिंग अप। वेव्स दे स्टार्ट ब्रेकिंग अप, तो क्या होता है, क्रेस्ट टूट जाते हैं और ट्रफ पीछे रह जाते हैं। अब जब ये क्रेस्ट ब्रेकअप होते हैं तो देयर इज अ पाइलिंग ऑफ क्रेस्ट वन ओवर द अदर। देयर इज अ पाइलिंग ऑफ क्रेस्ट वन ओवर द अदर। फिर ये पाइल्ड अप क्रेस्ट जो होते हैं, फिर ये आके टकराते हैं शोर के साथ। इस फिनोमिना को बोलते हैं स्वैश। फिर ये स्वैश वापस जाता है। अब अगर आप बीच पे खड़े हो, जब लहर वापस आती है तो आपके पाँव के नीचे गुदगुदी होती है। क्यों होती है? रेत खिसकती है। वो क्यों खिसकती है? बिकॉज ऑफ द जो स्वैश जब वापस जाता है वो नीचे से रेत को खिसकाता है, तो हल्का से गुदगुदी सी होती है। उस वापस जाने वाले स्वैश को बोलते हैं बैकवैश। जब भी लहर आके टकराती है शोर के साथ, कैसी आवाज करती है ना, इतनी लाउड क्या, बम तो ना पड़ता है। अब तभी नाम पड़ा इसका वैश। अब इसकी आवाज होती है, मत निकालना, नहीं होती। उसका नाम क्या है? बैकवैश। तो there's a one swash is coming, second swash is coming, and they keep on coming and then going, descending, going backward towards the open oceans. तो स्वैश आता है फिर वो वापस बैकवैश जाता है। ठीक हो गया? अब हर एक वेव जब शोर के पास पहुंचती है, ड्यू टू फ्रिक्शन फ्रॉम द बॉटम इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग अप। ठीक हो गया? इसको फिनोमिना को क्या बोलते हैं? सर्फिंग। क्या बोलते हैं? सर्फिंग फिनोमिना। ठीक हो गया? दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग ऑफ द वेव। अब सोचो, अब सुनामीज आर द सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेव्स कमिंग फ्रॉम द मिड ऑफ द ओशंस। जहां पे भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है तो क्या होगा, एंड दे आर मूविंग विद अ वेरी हाई रेट ऑफ मूवमेंट, सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेव्स। तो जब क्रेस्ट टूटेंगे तो क्या होगा, दे विल स्टार्ट बिल्डिंग वन ओवर द अदर वेरी फास्ट। तो एक वाटर वॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जब वो कोस्ट के पास पहुंचता है। फिर ये वाटर वॉल हिट करती है आपकी कोस्ट पे जाके। तो ओपन ओशन में इनकी हाइट कुछ भी नहीं होती। हाइट कब बढ़ती है इनकी? जब ये कोस्ट के पास पहुंचते हैं। दैट इज व्हाई देयर हाइट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ पाइलिंग ऑफ द क्रेस्ट वन ओवर द अदर। ठीक हो गया? तो जनरली 10 मीटर्स तक इनकी हाइट होती है, बट दे कैन बी अप टू 30 meters also. ठीक हो गया जी? तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, when the tsunamis reaches the shoreline, when the tsunamis reaches the shoreline, their height increases, their height increases up to 10 meters. नहीं, up to 10 meters due to breaking of the waves, due to breaking of the waves, and exceptionally, it can reach 30 meters as well. ठीक हो गया जी? तो ये है हमारी सुनामीज कैसे कॉज होती हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। अब देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो ईस्टर्न कोस्ट है, लेकिन अब लिखेंगे अदर कॉजेज भी लिख लेंगे, अदर कॉजेज ऑफ सुनामीज। Tsunamis can also be caused because of underwater volcanic eruptions. Underwater volcanic eruption. नंबर 2 पे लिख लेंगे underwater submarine slides. Underwater submarine slides. और सबमरीन स्लाइड्स, जैसे लैंड पे जब जमीन खिसकती है उसको क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड्स। जब अंडर वाटर होगा तो क्या बोलेंगे?
सबमरीन स्लाइड्स। तो लैंड स्लाइड्स जो हमारे सरफेस पे होती हैं वही अगर पानी के अंदर हो तो क्या बोलते हैं हम सबमरीन स्लाइड्स। ठीक हो गया जी। तो ये भी एक कॉजेज होते हैं हमारे सुनामीज के जनरेट होने के। अब इंडिया की हुई है, have got the western coast and we have the eastern coast. Eastern coast is more prone for the tsunamis because it's closeness to the plate boundary, that is your, यहाँ पे हमारी एक सुंडा प्लेट है और बर्मीज प्लेट है, उनका इंटरेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे अंडर वाटर अर्थक्वेक्स आते हैं और जिससे सुनामीज जनरेट होती हैं। तो जब हमारे इंडिया में दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी, दैट वाज वेरी वेरी डिवास्टेटिंग। इट वाज हाइट वाज अप टू 15 मीटर्स। तो ईस्टर्न कोस्ट इज मोर वल्नरेबल टू सुनामीज देन टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में भी आ सकती हैं बट मोर चांसेस आर इन द ईस्टर्न कोस्ट। तो जब कभी भी आप ईस्टर्न कोस्ट में किसी भी बीच में हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि सुनामी कभी भी आ सकती है। वेस्टर्न कोस्ट में हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चांसेस आर मच मच लेसर, बट ईस्टर्न कोस्ट में कभी भी आ सकती है। मेजर इसका जानने का तरीका क्या होता है, एक पॉइंट और ऐड कर दो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, उसके अंदर जो फीचर्स लेके थे ना सुनामीज के, उसमें पॉइंट कर देंगे। द सी लेवल suddenly drops. Sea level suddenly drops before the coming up of the tsunami. Before the coming up of tsunami. तो सुनामी से पहले सी लेवल रिसीड करता है, फिर सुनामी आती है। अब कभी आप चेन्नई में हो, विशाखापट्टनम में हो, भुवनेश्वर में हो, कहीं पर भी हो, यू आर एंजॉयिंग ऑन द बीच और एकदम देखो ना कि पानी रिसीड करना शुरू हो गया, पानी रिसीड करना शुरू हो गया। तो अगर ये सी लेवल है तो पहले आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, देन यू स्टार्ट लुकिंग कि सी लेवल रिट्रीट कर गया, वापस चला गया। तो वहाँ पे सीपियाँ इकट्ठी करने मत बैठ जाना। लैंड विल एक्सपोज एंड दोज विल कम अप, शेल्स विल कम अप, तो यू डोंट स्टार्ट कलेक्टिंग द शेल्स। वहाँ से अलार्म रेज करो और भागना शुरू कर दो एंड गो टू द हायर ग्राउंड। ठीक हो गया? बिकॉज आपको 10 से 15 मिनट मिलेंगे, उसके बाद फिर जो वेव्स आएंगी फिर वो छोड़ेंगे नहीं। फिर चुपचाप अगर फंस गए तो आंख बंद करके बैठ जाना और रब को याद कर लेना और मैं आ रहा हूँ तेरे पास। ठीक है? बिकॉज इससे बचना मुश्किल है। ठीक है? तो ये है, तो सी लेवल ऑलवेज रिट्रीट्स। जब यही हमारी सुनामी आई थी, इस टाइम पे एक छोटी सी बच्ची थी, है ना, आइलैंड थाईलैंड का फुके, वहाँ पर कोई पूरी फैमिली वर एंजॉइंग इन द बीच, तो दैट स्मॉल गर्ल सॉ द रिसीडिंग ऑफ द वाटर। तो उसने कभी उस क्लास में पढ़ा होगा, दिमाग में आ गया उसके, उसने अलार्म रेस कर दिया, तो उससे बड़े लोग बच गए थे। वो एक छोटे से बच्चे की समझदारी ने लोगों को, कुछ लोगों को बचाया था, अपनी फैमिली को बचाया, और कुछ लोग जिन्होंने बात उसकी सुन ली और मान ली और वहां से वो भाग गए टुवर्ड्स द हायर ग्राउंड सकते। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट। वैसे ही जब कभी आप पहाड़ी इलाके में हो तो किसी भी स्ट्रीम में आप एंजॉय कर रहे हो फैमिली के साथ, जैसे ही देखो कि पानी का कलर बदल रहा है, चुपचाप भाग जाओ, रेज एन अलार्म। तो पीछे क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। वो पानी अगर पूरा साफ पानी है, सडनली वो पानी मिट्टी वाला होना शुरू होता है, तो मतलब एकदम पानी आ सकता है। बिकॉज हिली एरियाज में क्या होता है, आपके एरिया में तो सनशाइन है, देर आर नो क्लाउड्स, नो रेनफॉल, बट पीछे देर माइट बी हैपनिंग सम वाटर, है ना, रेनफॉल हो सकती है, तो वो पानी सडनली राइज करता है। तो जैसे ही कभी पहाड़ी इलाके में आप एंजॉय कर रहे हो, जैसे ही पानी का रंग चेंज हो फ्रॉम क्रिस्टल क्लियर टू मडी, simple raise an alarm and run away. Go as far as you can. Because पानी एकदम बढ़ता है और पता भी नहीं चलता है। ठीक है? There's small things. चलो जी, बाकी कल करते हैं। Thank you.